Good evening, everyone. So, we understood the difference between the straight line method of depreciation and written down value method of depreciation. I said, when we provide depreciation on the original cost in each year, we are following straight line method of depreciation. On the contrary, when we provide depreciation on a reduced balances, we follow written down value method of depreciation or diminishing balance method of depreciation. लिख लेना यहाँ पे, ये होमवर्क था, ठीक है, ये होमवर्क था, राइट. सो ध्यान देना, सॉल्यूशन I will quickly solve this. ध्यान देना. If you are following SLM, if you following written down value of method WDV, they have given you balance, ₹5 lakhs and 5 lakhs less depreciation at the rate of 10% per annum, 20% per annum, sorry. So it is 1 lakh in case of SLM. Also in case of WDV it is same. Therefore, written down value at end of first year. End of first year. Under SLM it is 4 lakhs. Under WDV it is also 4 lakhs. Then less depreciation at the rate of 20% per annum. In SLM, this 20% is always and always applied on the original cost, irrespective of the year. It is always and always applied on the original cost. So it is again 1 lakh. But in case of written down value method, you apply rate, right, on a value which is reduced value. So 4 lakhs. 4 lakhs का 20% is 80,000. Therefore, written down value at end of second year. In SLM, it is 3 lakhs. In WDV, it is 3,20,000. Then, less depreciation at the rate of 20% per annum. SLM में irrespective of the year, it is always applied on the original cost. 5 lakh का 20%, it is 1 lakh. On the contrary, in case of WDV, जो वैल्यू है, जो वैल्यू बची है थर्ड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के बिगिनिंग के वैल्यू पे, सो 3,20,000 का 20%, 64,000. Therefore, written down value at end of third year. It is 4 lakhs in case of SLM. Sorry, 2 lakhs in case of SLM. In case of SLM, and it is 2,56,000 in case of written down value method. Then fourth year, less depreciation at the rate of 20% per annum.
अगेन 1 लाख, बट यहाँ पे 2,56,000 का 20%, 25,600 10% रहेगा, उसका डबल 25 का डबल 50, 50,000, 600 का डबल 1,200, 51,200। Therefore, written down value at end of fourth year, it is 1 lakh in case of SLM, and in case of written down value method it is 2,04,800। अगर हम फिफ्थ ईयर भी देते हैं 20% रेट है, मतलब 5 ईयर लाइफ है, 20 + 20 + 20 + 20 + 20 इट इज 100%। दिस इज लास्ट ईयर, सपोज मैंने 4 ईयर ही बोला था, बट लास्ट ईयर देखो, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर annum, इट इज 1 लाख। तो यहाँ पे बैलेंस जीरो हो गया। वही मैंने कल डिफरेंस में वही लिखा था, डिफरेंस में वही लिखा था, क्या लिखा था ध्यान देना, उन्होंने लिखा था कि इन केस ऑफ एसएलएम, इन केस ऑफ एसएलएम द बैलेंस वैल्यू सबसे एंड में जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे इन केस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 2,04,800 का 20%, 10% आता है 20,480, उसका डबल चाहिए, 20,000 का डबल 40,000, 480 का डबल 960, 40,960। तो बैलेंस बचेगा 1,63,840। यू कैन सी जब उसकी लाइफ खत्म होगी, जब उसकी लाइफ खत्म होगी, 5 years इज अ लाइफ, 20% अगर आपका डेप्रिसिएशन मतलब 5 ईयर लाइफ है, बिकॉज 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20%। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ अगर आप एसएलएम फॉलो करते हो तो योर बैलेंस वैल्यू बिकम जीरो और इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। यहां पे स्क्रैप वैल्यू 3 है, ठीक है, एट एंड ऑफ 5th ईयर। बट वही अगर आप WDV के केस में देखते हो, इट नेवर बिकम जीरो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, कभी भी जीरो नहीं होती वो WDV में, दैट इज द डिफरेंस। सो अगर आपको समझा होगा तो हम क्वेश्चंस आगे करते हैं। किसी के डाउट्स है क्या इसमें, है क्या किसी के डाउट्स? इफ एनीवन हैज डाउट देन टेल मी। आगे एनीवन हैज डाउट, चलो जल्दी। तो दैट इज द डिफरेंस। बस अमाउंट कौन से वैल्यू पे, तो यहां पे फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम, depreciation under SLM, if rate is not given, if they have not given you rate, if they have not given you rate, how will you find out, right? Depreciation लिखो, original cost less estimated scrap value divided by estimated useful life। क्या है? If they are not given you life, if they are not given you rate of depreciation, SLM में अगर उन्होंने हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज योर राइट डेप्रिसिएशन पर एनम। डेप्रिसिएशन पर एनम लिखो, डेप्रिसिएशन पर एनम।
डेप्रिसिएशन पर एनम। आगे नेक्स्ट, और व्हेन दे हैव गिवन यू रेट, अगर उन्होंने आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा तो इफ रेट इज गिवन 10%, 20%, 15%, 5%, तो लिखो डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू, तो उस केस में स्क्रैप वैल्यू लाइफ का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रेट दिया होगा तो। ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, डायरेक्टली ओरिजिनल कॉस्ट पर रेट लगाने का, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12/12। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर उन्होंने आपको क्या बोल रहा, ध्यान देना, इफ दे हैव गिवन यू रेट तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। इन ईच ईयर, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर, कोई भी ईयर हो, you have to always apply, you have to always apply the rate on which number, right, on which value, original cost। वही लिखो depreciation under WDV, under return on value method और diminishing balance method लिखो। इसमें दे हैव टू गिव यू रेट, विदाउट रेट आप डिप्रेशन निकाल ही नहीं सकते, रिटर्न डाउन वैल्यू में उनको आपको रेट देना ही पड़ेगा। देयरफॉर रेट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन। उनको रेट देना ही पड़ता है। जब डब्ल्यूबी के क्वेश्चन होते हैं ना, दे डोंट गिव स्क्रैप वैल्यू, वो स्क्रैप वैल्यू देते ही नहीं, वो डायरेक्टली आपको रेट दे देते। लाइफ की भी जनरली नहीं बोलते, डायरेक्टली रेट दे देते। डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू, ठीक है, इन फर्स्ट ईयर और इन द ईयर ऑफ परचेस, इन ईयर ऑफ परचेस, in the first year or in the year of purchase, you calculate depreciation on the original cost, you calculate depreciation on the original cost, but in the subsequent year, in the subsequent years, opening balance or WDV, return down value, multiply by rate divided by 100 multiply by 12/12। सो जो ओपनिंग बैलेंस होगा सेकंड ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के बिगिनिंग में जो बैलेंस होगा उस पे, थर्ड ईयर के एंड में जो डिप्रेशन देना है, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में जो बैलेंस होगा उस पे, फोर्थ ईयर के एंड में अगर डिप्रेशन देना है तो फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में जो है उस पे। तो लिख लेना। सो ये आपको समझेगा, मतलब मैं जानबूझ के आपको लिख के दे रहा हूँ, ये चीजें लिख लेगा। सो एकदम कंफर्म होना चाहिए, दिमाग में एकदम प्रिंट होना चाहिए। इज इट बिकॉज यू कांट फाइंड? ऐसे नहीं होता। एक्चुअली वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग द स्क्रैप वैल्यू, बट वो फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। इफ यू हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर SLM, under WDV, the formula of rate is 1 minus nth root of R divided by C। ये फॉर्मूला है, ये कोई आपको बोलेगा भी नहीं। सर हमें अगर स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ दी होगी तो हम WDV में कैसे ढूंढेंगे? अगर हमें कॉस्ट असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पता है, वो तो पता ही होगी। हमें स्क्रैप वैल्यू दी है सर, हमें लाइफ दी है,
और हमें WDP फॉलो करना है. कैन वी डू? वी कैन डू, provided we have to find out rate of depreciation using this formula, where R is a rate of depreciation, N is life in years, R is scrap value और residual value. scrap value को residue value भी बोलते हैं, बची हुई value, residual value or scrap value, and C is the cost, original cost. ये फॉर्मूला यूज करके हम रेट ढूंढ सकते हैं, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. आई कैन शो यू वन क्वेश्चन. अरे मैं कहाँ पे आ गया? बॉस में क्यों आया? बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल. I can show you. अरे हो स्लो है थोड़ा. हाँ, सफारी कैनॉट ओपन. वो मे बी आज रिजल्ट है इंटर का, इसकी वजह से वो साइट हेवी रहेगी शायद से. दिखाई नहीं रहा, ठीक है. नेक्स्ट, आगे अब हम क्वेश्चंस करेंगे ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ध्यान देना, अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चंस करेंगे. देखो इंट्रीज क्या लिखी है, ध्यान देना. ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंट्रीज. इन द ईयर ऑफ परचेस, इंट्रीज asset account debit to cash oblique bank. For purchase of asset on credit, asset account debit to vendor account credit or supplier account credit or creditor account credit. For other incidental expenses incurred to put the asset into operation, बाकी expenses to bring the asset into present location and condition, asset account debit to cash oblique bank. For charging depreciation to asset, and then balance in depreciation account is transferred to P&L to depreciation account. Second year में, right, depreciation to asset and P&L to depreciation. During the year of sale, जिस ईयर में सेल होगा पहले depreciation दिया जाएगा. For depreciation charge up to the date of sale, depreciation to asset. फिर asset sale होगी, for sale of the asset, right, bank account debit to asset account credit. फिर प्रॉफिट, ये उन्होंने कम, राइट. इफ असेट इज सोल्ड एट बुक वैल्यू, मतलब 10,000 की असेट 10,000 में सेल हो गई, 10,000 की असेट 10,000 में सेल हो गई, सो नो प्रॉफिट नो लॉस है, राइट. तो इंटर आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू असेट अकाउंट क्रेडिट 10,000. फॉर द सेल ऑफ असेट एट प्रॉफिट, मतलब एग्जांपल 10,000 की असेट आपने 12,000 में सेल की, तो इंटर आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू असेट अकाउंट गोज आउट 10,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 2,000, राइट. ट्रांसफरिंग प्रॉफिट और लॉस टू P&L, फिर वो प्रॉफिट P&L में जाएगा, प्रॉफिट लॉस टू P&L. फॉर सेल ऑफ असेट एट लॉस, अगर 10,000 की असेट आप 7,000 में सेल करते हो, लॉस, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, loss account debit 3,000 to asset of 10,000 goes out to asset 10,000, or you can split the increase, कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रांसफरिंग द लॉस ऑफ द डेबिट बैलेंस, वो P&L के डेबिट पे जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट. डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग असेट, डेप्रिसिएशन टू असेट, एंड फिर डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफर करना, P&L टू डेप्रिसिएशन. दीज आर द इंट्रीज.
नहीं, तो हमने यही किया है, मैं वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें WDV के क्वेश्चन करने हैं। यस, यहां से स्टार्ट होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 232, एवरीवन। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 232, मेरे साथ ध्यान दे के करना है, कोई जल्दी नहीं है, समझ के करेंगे। यस, क्या लिखा है ध्यान देना। Saurabh bought machine costing rupees 1,15,000 on 1st April 16. Year ends on 31st March. So this is purchase in the year 1617. उसके beginning में ही हमने purchase किया, 1617 के beginning में first day पे purchase किया, and paid rupees 5,000 towards installation. So total machinery is 1,20,000. He write off depreciation at the rate of 10% per annum on written down value method. जो बच्चा है उसका depreciation, जो बच्चा है उसका depreciation every year. His books are closed on 31st March every year. On 1st October 2018, he disposed of the machine. He sold the machine. Disposed of मतलब sold for 80,000. Right? Give the entries, right, in the books till the 31st March 2019. ठीक है, ध्यान देना मैं कैसे करता हूँ, ध्यान देना। हमें एंट्रीज पूछिए, हमें एंट्रीज पूछिए, एक वर्किंग नोट डालता हूँ, ध्यान देना। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, कैसे वर्किंग नोट डालनी, ध्यान देना। राइट, ओरिजिनल कॉस्ट on 1st April 16. 1st April 16 is 1,20,000. Less depreciation for 1617. 1617 का depreciation at the rate of, right, 10% per annum. So 1,20,000 का 10% फॉर द एंटायर ईयर, अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च एंड पूरा साल विल बी 12,000. इसके 31st मार्च को रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31st मार्च 17. 1617 के एंड में मशीनरी अकाउंट में बैलेंस होगा 1,08,000. मशीनरी अकाउंट में बैलेंस होगा 1,08,000. अब स्टार्ट होगा 1718. 1718 में 1718 1st अप्रैल 17 से 31st मार्च 18 के बीच में कोई परचेस, कोई सेल है क्या? नहीं. जो सेल हुआ है वो 1819 में हुआ है. सो ये था आपका 1617 ईयर. अब हम कर रहे हैं 1718 ईयर. सो हमारे 1718 ईयर के लिए हमारे पास बैलेंस है, ओपनिंग में बैलेंस है WDV एज ऑन 31st मार्च 17 और 1st अप्रैल 18 इज वन एंड द सेम. 1st अप्रैल 17, सॉरी 18 ही बोल रहा हूँ, 1st अप्रैल 17. 31st मार्च 17 का क्लोजिंग बैलेंस 1st अप्रैल 17 को ओपनिंग बैलेंस बनेगा और फिर हम उसको पूरे साल यूज करेंगे. हम उसको 1718 में पूरा साल यूज कर रहे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन फॉर 1718 एट द रेट ऑफ 10% पर annum. आप मुझे बोलो कौन से वैल्यू पे डिप्रेशन दे दो, 1,20,000 पे दे दो या 1,08,000 पे देना है? WDV मेथड है. टाइप द आंसर. कौन से वैल्यू पे डिप्रेशन दे दो? यस यस 1,08,000 पे. परफेक्ट, गुड ओबी मैम. 1,08,000 पे 10% पूरे साल अप्रैल से मार्च 10,800. Therefore, written down value at the end of as on 31st March 18, or you can also say 1st April 18.
सो इट विल बी 10,000 माइनस होगा तो 98,000, फिर 800 माइनस होगा 97,200, 97,200, 97,200। 1 अप्रैल 18 की वैल्यू आ गई। अब ईयर स्टार्ट हो रहा है 18-19, अब ईयर स्टार्ट हो रहा है 18-19, उसके बिगिनिंग में 97,200 की एसेट है, 18-19 में एसेट सेल हो रही है, कितने मंथ्स यूज होने के बाद, राइट, 6 मंथ्स यूज होने के बाद। 1 अप्रैल 18 को हमारे मशीनरी की वैल्यू है 97,200, अप्रैल 18 यूज हो गया, मई 18, जून 18, जुलाई 18, अगस्त 18, सितंबर 18, 6 मंथ्स यूज हो गए एंड 1 अक्टूबर 18 को हमने सेल कर दिया, तो 6 मंथ्स यूज होने के बाद सेल हुआ है, लेस depreciation, right, depreciation from 1 April 18 to 1 October 18, that is 6 months at the rate of 10% per annum. So I will calculate depreciation on the balance value 97,200, मैं थर्ड ईयर में डिप्रेशन दे रहा हूँ, तो थर्ड ईयर 18-19 में डिप्रेशन दे रहा हूँ, 18-19 में, तो 18-19 के बिगिनिंग में जो वैल्यू है 97,200 उसका 10% फॉर हाफ ईयर, 97,200 का हाफ रहेगा 9,720, तो 9,000 का 4,500, 720 का 360, so 4,500 plus 360 which is 4,860. Therefore 6 month depreciation देने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 October 2018, 97,200 minus 4,860, the balance is 92,340। जिस दिन एसेट सेल हो रही है उस दिन हमारे बुक्स में उसका बैलेंस है 92,340 लेस सोल्ड एट। हमने कितने में सेल किया, पढ़ो, हमने 80,000 में सेल किया, सो 92,340 की एसेट हमने 80,000 में सेल किया, देयरफॉर लॉस ऑन सेल 12,340, 12,340। ये कैलकुलेशन समझा क्या, ये अकाउंट नहीं है, दिस इज नॉट अकाउंट, ये कैलकुलेशन है, बट अकाउंट भी बोल सकते हो। देखो मशीनरी अकाउंट के डेबिट पे आएगा टू असेट 1,20,000, फिर क्रेडिट पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन 12,000, इसलिए बैलेंस दिखेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,08,000, जो नेक्स्ट ईयर के डेबिट पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,08,000, फिर क्रेडिट पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन 10,800, इसलिए बैलेंस दिखेगा, राइट, बैलेंस दिखेगा, डेबिट बैलेंस दिखेगा 97,200 बाय बैलेंस कैरी डाउन 97,200, जो नेक्स्ट ईयर के डेबिट पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 97,200, फिर उस ईयर में सेल होने वाला है बाय डेप्रिसिएशन 4,860, 1 अक्टूबर को बाय डेप्रिसिएशन 4,860, बाय कैश 80,000, बाय लॉस 12,340। ये आपका डेप्रिसिएशन, ये आपका मशीनरी अकाउंट ही है, बट प्लस माइनस फॉर्मेट में नहीं है, राइट, ऐसे आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, टी फॉर्मेट में नहीं, हमें वो करना है, बट मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। तो फर्स्ट एंट्री लिखो, उन्होंने जर्नल एंट्री पूछी ना, तो जर्नल फर्स्ट ईयर इज 16-17 लिखो, हमने 1 अप्रैल को असेट परचेस की, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू राइट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, वी परचेस असेट फॉर 1,20,000, इसलिए मशीनरी के डेबिट पे आएगा 1,20,000 टू कैश, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 17 को we will provide depreciation account debit to machinery account debit,
वी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹12,000. आपने 12,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया. बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द एंटायर ईयर. फिर हम डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट रेट 12,000. ठीक है. यस. हाँ वर्धन, कोई डाउट है? वर्धन ओके नहीं है. आगे नेक्स्ट. ठीक है आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं हम लोग. सॉल्व रिटर्न डाउन वैल्यू का. तुम लोग लेट ज्वाइन मत करते जाओ रे, समझ में नहीं आता बाद में. ठीक है. परचेस असेट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन क्लोज्ड. अब 17-18 में कोई परचेस नहीं, कोई सेल नहीं, खाली डेप्रिसिएशन. 31 मार्च पे डेबिट. डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. सेकेंड ईयर में कितने का डेप्रिसिएशन बैठ रहा है? फर्स्ट ईयर में 12,000 का था, सेकेंड ईयर में 10,800 का है. तो 10,800. Close the depreciation. Profit and loss account debit to depreciation. 10,800. क्लोज कर दिया डेप्रिसिएशन. अब ईयर थर्ड 18-19 क्या हुआ? 18-19 का ध्यान देना. 18-19 में 6 मंथ्स एसेट यूज होके हमने उसको सेल किया, तो पहले 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन. 1 अक्टूबर को डेप्रिसिएशन आएगा. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4860 आई थी. कितना? 4860. 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. Then sell the asset. बैंक अकाउंट डेबिट कितने में सेल हो गए? 80. टू मशीनरी अकाउंट डेबिट. अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की एंट्री, अगर लॉस है तो लॉस की एंट्री. प्रॉफिट है तो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, मशीनरी को डेबिट करना होता है, तो मशीनरी के डेबिट पे आता है वो. मशीनरी डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. अगर लॉस है तो लॉस डेबिट होगा, मशीनरी को क्रेडिट होगा. यहाँ पे लॉस है तो लॉस को डेबिट किया जाएगा. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट. लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए मशीनरी को क्रेडिट किया जाएगा. कितना लॉस हुआ? 12,340. एंड फिर हम क्या करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर जो नॉमिनल अकाउंट है, लास्ट ईयर में कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट है? एक डेप्रिसिएशन, दूसरा लॉस. ये दोनों अकाउंट्स को हम P&L में ट्रांसफर करेंगे. रिमेनिंग एसेट है जिसको डेप्रिसिएट करना है नहीं, एक ही एसेट है वो सेल हो गई. तो 31 मार्च पे कोई डेप्रिसिएशन अलग से नहीं आएगा. अब हम 31 मार्च पे जब P&L करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट्स को P&L में ट्रांसफर करेंगे. टू डेप्रिसिएशन टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. डेप्रिसिएशन कितना है? 6 मंथ्स का 4860. एंड लॉस इज 12,340. 4860 प्लस 12,340 टोटल 17,200 P&L में. लिखो जल्दी करो. ये फर्स्ट ईयर की एंट्रीज, मेक इट फास्ट. फिर हम एसेट अकाउंट करेंगे. अच्छे से समझ के करो, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. समझ के करो प्लीज. कुछ भी SLM और WDM में एज इट इज ऐसे एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है, खाली कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है, नथिंग एल्स.
जल्दी ठीक से लिखो। ये फर्स्ट 3 एंट्रीज, देन सेकंड ईयर के 2 एंट्रीज, एंड लास्ट ईयर के एंट्रीज। हो गया लिख के बोलो। हाँ लिखो। ओके अब हम करेंगे मशीनरी अकाउंट। मेरे साथ एवरीवन वही अकाउंट जैसे पहले भी करते थे। कुछ देखो एंट्रीज में कोई फर्क नहीं, वैल्यूज में फर्क आता है खाली, ठीक है। सो लिखो मशीनरी अकाउंट। एक ही मशीनरी इसलिए कोई इनर कॉलम की जरूरत नहीं। मैं जेएफ कॉलम नहीं निकाल रहा हूं, बट आपके एग्जाम में आपको जेएफ कॉलम निकालना होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर इज 16-17, हमने असेट परचेस की 1,20,000 की 16-17। हमने असेट परचेस की 1 अप्रैल को टू कैश अकाउंट 1,20,000। लेजर में कभी भी नरेशन नहीं आता, कैश बुक में नरेशन आता है, लेजर में नहीं आता, ठीक है। जर्नल में नरेशन आता है, कैश बुक में नरेशन आता है, दूसरे लेजर में नहीं आता। एट द एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन 12,000, therefore by balance 1,08,000। देखो ये जो मैंने प्लस माइनस लिखा है ना वही है। मशीनरी में डेबिट में आया 1,20,000, क्रेडिट पे आया 12,000, इसलिए बैलेंस बाकी है 1,08,000, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहां पे लिखो 1780। इधर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,08,000। 1,08,000 डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। कोई दूसरा परचेज के लिए डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, सेल है तो क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है। डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन लेंगे बाय डेप्रिसिएशन। दिस डेप्रिसिएशन विल नॉट बी 1,20,000 बट ऑन 1,08,000। 1,08,000 अगर आप 1,20,000 पे देते हो, सेकंड ईयर में भी आप ओरिजिनल कॉस्ट पे देते हो तो वो SLM होगा। बट हम सेकंड ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के बिगिनिंग के वैल्यू पे दे रहे हैं तो WDV मेथड है। 10,800 and therefore the balance is 97,200। यहां पे सेकंड ईयर खत्म हुआ। अब 18-19 इस ईयर में असेट सेल होने वाली है। 17-18 का क्लोजिंग, 18-19 का ओपनिंग होगा 1 अप्रैल। टू बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन 97,200। असेट 6 मंथ यूज होके सेल हुई है तो 1 अक्टूबर को हम डेप्रिसिएशन देना होगा बाय डेप्रिसिएशन। हमने 97,200 पे 18-19 में 18-19 के बिगिनिंग के वैल्यू पे डेप्रिसिएशन दिया जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10%। Not for the entire year, but just for 6 months till the date of sale, which is 4860, which is 4860. So 97,200 minus 4860
ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी वैल्यू है राइट 97,200 माइनस 4860 ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी वैल्यू 92,340 है विच यू सोल्ड फॉर 80,000 देयरफॉर बाय बैंक और बाय कैश 80,000 and therefore there is a loss on sale of assets. कितने का लॉस हुआ 12,340 लिखो लिखो बैलेंस जीरो है लिखो कितना सिंपल है देखो हमारे पास 1,20,000 की एसेट थी हमने फर्स्ट ईयर में 12,000 का डेप्रिसिएशन देके उसकी वैल्यू 1,08,000 है जो सेकंड ईयर के बिगिनिंग में आ गई फिर हमने 10,800 का डेप्रिसिएशन दिया वैल्यू 97,200 है थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 97,200 आ गया 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दिया 80,000 पे हमने सही किया द बैलेंस जो बैलेंस है 12,340 ये जो असेट अकाउंट में बैलेंस है 12,340 ये डेबिट बैलेंस है ये डेबिट हम लॉस को डेबिट करते हैं दिस इज लॉस सर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखो डेप्रिसिएशन टाइम पास अकाउंट लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट एवरीवन फर्स्ट ईयर कौन सा था 16-17 16-17 में आप देख सकते हो यहाँ पे मशीनरी को क्रेडिट है बाय डेप्रिसिएशन इसलिए डेप्रिसिएशन के डेबिट पे आएगा टू मशीनरी सेकंड ईयर कंप्लीट कर रहा हूँ 12,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000 जो क्लोज किया जाएगा P&L में डेबिट करके सो एंट्री आएगी P&L डेबिट मशीनरी डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट डेप्रिसिएशन टैली हो गया क्लोज हो गया अब ईयर आ गया 17-18 के क्रेडिट पे यू कैन से डेप्रिसिएशन है मशीनरी में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन 10,800 इसलिए डेप्रिसिएशन में आएगा सेकंड फिर कंप्लीट करेंगे टू मशीनरी 10,800 17-18 के ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन में डेबिट बैलेंस है 10,800 जो हम क्लोज करेंगे P&L में ट्रांसफर करके बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,800 थर्ड ईयर में 1 अक्टूबर को मशीनरी में क्रेडिट है बाय डेप्रिसिएशन इसलिए डेप्रिसिएशन में डेबिट होगा 1890 1 अक्टूबर को टू मशीनरी कितना डेबिट होगा 4860 उधर क्रेडिट है इधर डेबिट होगा और ये ईयर एंड होगा तब P&L में ट्रांसफर किया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4860 and always remember therefore depreciation account never has balance because whatever balance is transferred to which account P&L account whatever is a balance is transferred to P&L account लिखो मैंने इस क्वेश्चन में आपको हर चीज निकाल के दिखाया मैंने इंट्रीज लिख के दिखाया मैंने मशीनरी अकाउंट करके दिखाया मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी करके दिखाया लिखो ठीक से लिखो पहले ही है जिन्होंने नहीं लिखा है मशीनरी
लिखो जल्दी, मैं वीडियो चाहे तो 1 मिनट के लिए हाइड करता हूं। नंबर ऑफ कोरोना केसेस इज इंक्रीजिंग, सो टेक केयर, अननेसेसरी घर के बाहर इधर उधर मत घूमो, ठीक है। अनस बोल रहा है यू हैव योर एग्जाम ऑन 9th अप्रैल, नो इश्यूज। आई हैव माई एग्जाम ऑन 30th मार्च। अरे देव का एग्जाम 30th मार्च को है। उनका क्या पूरा सिखा के हो गया क्या रे कॉलेज में? अनस पूरा सिखा के हो गया क्या सिलेबस? पता नहीं, ओके। एंड व्हाट अबाउट देव, तुम्हारा हुआ क्या रे पूरा सिखा के? ठीक है, आगे। अभी क्या कॉलेज में कौन सा चैप्टर चल रहा है? बीएमसीसी में कौन सा चल रहा है? बीएमसीसी में बोलो। ओके, जर्नल इज कंप्लीटेड, गुड। अच्छा, वाडिया में कौन सा चल रहा है रे? वाडिया में वाडिया में कौन सा चल रहा है? वाडिया में जर्नल चैप्टर, ओके। थर्ड चैप्टर, थर्ड मतलब कौन सा है? हाँ तो जर्नल सब्सिडी रहेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जर्नल ही चल रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ। कॉलेज का ज्यादा टेंशन मत लेना, कॉलेज वाले 2 साल भी जर्नल चलाएंगे, कॉलेज वालों को टेंशन नहीं। आगे नेक्स्ट, वी हैव स्टार्टेड जर्नल कॉलेज में, ठीक है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो अब हमने धीरे धीरे स्पीड गेन किया, बिकॉज अगर बेस स्ट्रांग है ना, ध्यान देना, जिसको जर्नल अच्छे से आता है, लेक्चर अच्छे से आते हैं ना, उसको आगे वाले चैप्टर्स इजी लगते हैं। नहीं, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, यस, पेज नंबर 232 पे था, ठीक है। आगे देखो, ये वैसे मैंने जो जैसे कैलकुलेट किया ना, उन्होंने वैसे कैलकुलेट किया। आगे देन इलस्ट्रेशन 2 करते हैं एवरीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ध्यान देना। इलस्ट्रेशन नंबर 2, वी हैव 20 मिनट्स बिफोर वी कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन, ध्यान देना एवरीवन।
संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्डाना purchase vehicle on 1st April 16. Year ends on 31st March each year. 31st March year मतलब ये 16-17 में परचेस किया आपने. Costing rupees 85,000 and spent 5,000 in registration. So machinery 190,000 की है. Machinery 190,000 की है. On 30th September 16 मतलब ही 16-17 में एक 1st April 16 को परचेस की और फिर 30th September 16 को सेम ईयर में एडिशनल व्हीकल इज परचेस मशीनरी टू 10,000. ऑन 31st March 18 खत्म होने पे मतलब 17-18 इन नेक्स्ट ईयर 16-17 में दो असेट परचेस किए. 17-18 के एंड में 17-18 के एंड में व्हीकल वाज सोल्ड फॉर 12,000. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हिच वाज 20,000 on 1st April 16. ये जो 1st April 16 को हमारे पास टोटल 90,000 की एसेट है. 1st April 16 को हमारे पास 90,000 की एसेट है, उसमें से 20,000 की एसेट सेल हो गई. सो हमें उसको 90,000 को स्प्लिट करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2. ध्यान देना 1st April 16 को मतलब हमने 16-17 अकाउंटिंग ईयर में हमने मशीन 1 परचेस की ऑफ 90,000. इसमें से पार्ट 1 जिसकी कॉस्ट 20,000 है वो आगे जाके सेल हो गई एंड दिस पार्ट 2 70,000. हम पहले से ऐसे स्प्लिट करके रखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2. पूरी की पूरी मशीन सेल नहीं हुई है, 90 की 90 मशीन सेल नहीं हुए, उसमें से जिसकी कॉस्ट 20,000 थी वो सेल हो गई. कौन से ईयर में 17-18 नेक्स्ट ईयर में सेल हो गई. On 31st March 18, that is at the end of 17-18, vehicle was sold for 12,000. 12,000 पे सेल हो गई. The original cost of which was 20,000 on 1st April 2016. 1st April 16 को मतलब ये वाली उसकी कॉस्ट 20, तो हम उसको स्प्लिट करके लिखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 सेल हो गया, पार्ट 2 एज इट इज है. ठीक है. फिर आपने एक और एसेट परचेस की थी 30th सितंबर को इन द सेम ईयर. मशीन 2 आपने परचेस की थी फॉर 12,000 फॉर 10,000. ठीक है. आगे प्रिपेयर व्हीकल अकाउंट फॉर 16-17, 17-18 and 18-19 and pass the entries for the year 17-18 assuming vehicle is depreciated at the rate of 10% per annum under diminishing balance method. Diminishing balance method 10% डिमिनिशिंग बैलेंस पे देना है, रिड्यूस बैलेंस पे देना है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू मेथड. ठीक है. इसमें डेप्रिसिएशन पहले निकाल के कोई फायदा नहीं बिकॉज एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चेंज होता है. एसएलएम में हम एक ही बार डेप्रिसिएशन निकाल के रखते हैं और एवरी ईयर वही डेप्रिसिएशन देते हैं. डब्ल्यूडब्ल्यू में वो जरूरत नहीं. तो अब हम यहाँ पे वर्किंग के लिए कॉलम अंदर इनर कॉलम निकालना होगा. व्हीकल अकाउंट, एवरीवन विथ मी, व्हीकल अकाउंट. तीन ईयर का व्हीकल अकाउंट निकालना है. अरे महक क्या कर, महक वो एब्सेंट लग रही मुझे. महक मैडम है क्या? महक शायद से एब्सेंट है वो. शायद से वो अटेंड नहीं कर रही कुछ दिनों से. ओके, ध्यान देना. व्हीकल अकाउंट फर्स्ट ईयर कौन सा है? 16-17 लिखो. 16-17 1st अप्रैल को हमने एसेट परचेस की टू बैंक. हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे मशीनरी परचेस किए. पार्ट 1 फॉर 20,000, पार्ट 2 फॉर 70,000. ऐसे हमने टोटल 90,000 की मशीनरी परचेस की. मैंने जानबूझ के पहले से ही मैं स्प्लिट करके चलता हूँ.
मेरे दिमाग में सेल के टाइम मुझे तकलीफ ना हो, इसलिए मैं पहले से उसको स्प्लिट करके चल रहा हूँ। फिर 30 सितंबर को मैंने एक और मशीन परचेस की, 30 सितंबर को, टू बैंक, कैश लिखो बैंक लिखो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमने एक और मशीनरी परचेस की 10,000 की। तो हमारे पास मशीनरी 1 है, हमारे पास मशीनरी 2 है, ये M2 है, ठीक है। फिर पूरे साल यूज होने के बाद हम 31 मार्च को उसको डेप्रिसिएट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। पार्ट 1 पे हम 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे, पार्ट 2 पे हम 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे, एंड पार्ट 3 पे हम, पार्ट 3 नहीं, मशीन 2 पे हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे। सितंबर एंड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। एट व्हाट रेट? उन्होंने लिखा है 10% पर एनम। सो 20,000 पे 10% फॉर द ईयर 2,000। पार्ट 2 70,000 पे 10% फॉर द ईयर 7,000, एंड 10,000 पे 10% फॉर हाफ ईयर। 10,000 पे 10% 1000 आता है, हाफ ईयर का 500 आएगा। So it is total 9,500. So balance by balance कर दो। पार्ट 1 का बैलेंस कितना है? 20,000 में से 2,000 का डिप्रेशन आने के बाद 18,000। पार्ट 2 का बैलेंस कितना है? 70,000 में से 7,000 का डिप्रेशन जाने के बाद 63,000। एंड मशीन 2 का बैलेंस कितना है? मशीन 2 10,000 की थी, 500 का डिप्रेशन जाने के बाद 9,500, and therefore total value is right 90,500. 90,500. 90,500 ये फर्स्ट ईयर डन। लिखो जल्दी, ये फर्स्ट ईयर समझा क्या रहे? फर्स्ट ईयर समझा क्या? यस और नो? यस और नो? सिंपल था, गुड। एसएलएम में डब्ल्यूडीओ फर्स्ट ईयर सेम ही रहेगा इन दिस केस। रेट्स जब तक रेट सेम है तब तक एसएलएम डब्ल्यूडी फर्स्ट ईयर सेम रहता है, 17-18। आई थिंक 17-18 में सेल हुआ है, यस 17-18 लास्ट डे पे सेल हुआ है। ओके, ओपनिंग बैलेंस ले लो फर्स्ट अप्रैल में, टू बैलेंस बॉट डाउन। मेरे पास पार्ट 1 है 18,000, मेरे पास पार्ट 2 है 63,000, मेरे पास मशीन 2 है 9,500। इसलिए मेरे पास टोटल असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 90,500 थे। परचेस हुआ तो डेबिट करूंगा टू कैश ऑब्लिक बैंक, सेल होगा तो डिप्रेशन देके सेल करूंगा। अप्रैल 17 खत्म, मई 17 खत्म, जून 17, जुलाई 17, अगस्त 17, सितंबर 17, अक्टूबर 17, नवंबर 17, दिसंबर 17, जनवरी 18, फरवरी 18, मार्च 18 भी खत्म हो गया, एंड लास्ट डे पे आपने पार्ट 1 सेल किया। सो लास्ट डे पे सेल होने वाला है, पूरे साल यूज होने के बाद सेल होना है, तो उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा बाय डेप्रिसिएशन। पार्ट 1 पे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। मुझे बोलो कौन से वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालो? शुड आई कैलकुलेट ऑन 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट और 18,000? बोलो मैं कौन से वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालूं? टाइप, कौन से वैल्यू पे निकालूं? 18,000। सो 18,000 पे समझने के लिए लिख रहा हूं 10% फॉर 12/12 विच इज 12/12 विच इज 1,800। तो जिस दिन वो असेट सेल हो रही है, ध्यान देना, जिस दिन वो असेट सेल हो रही है
उसकी मेरे बुक्स में वैल्यू 18,000 माइनस 1800, 16,200 है, तो यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। रिटर्न डाउन वैल्यू, बैलेंस वैल्यू आई मीन, एज ऑन 1 April 17, 18,000 लेस depreciation from 1 April 17 to 31st March 18, 1,800 till the date of sale. 16,200 is written down value on the date of sale, which is last date. Date of sale. Date of sale. So जो असेट सेल हुई है उसकी मेरे बुक्स में बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू 16,200 है, और मैंने कितने में सेल किया रे वो? मैंने वो 12,000 में सेल किया। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बोलो। लेस लॉस, लेस सोल्ड एट 12,000। लॉस हुआ कितने का? देयरफॉर लॉस ऑन सेल। तो लॉस डेबिट होगा, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट होगा। 4,200 का लॉस हुआ। तो यहां पे बाय, ठीक है, बाय कैश मैंने 12,000 में सेल किया, एंड देयरफॉर बाय लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 4,200 आई थी। कितना था? 4,200 ना, 4,200। समझा क्या? यस और नो? ये समझा क्या? असेट सेल हुई उसका समझा क्या? ओके गुड। अब क्या हुआ? रिमेनिंग असेट को डेप्रिसिएशन देना है बाय डेप्रिसिएशन। पार्ट 2 पे 12 मंथ्स का वो कौन से वैल्यू पे आएगा? पार्ट 2 पे 70,000 पे निकालो या 60,000 पे निकालो? डब्ल्यूडीबी फॉलो कर रहे हैं, कौन से वैल्यू पे 10% डिप्रेशन निकालो? बोलो जल्दी। 63। गुड, 63,000 पे सर, at the rate of 10% for the entire year। ऐसे समझ के करने का तो है ना, लाइफ टाइम याद रहेगा। और मैंने बोला इनकम टैक्स में यही मेथड फॉलो होती है, तो आपको मरते दम तक ये लगेगा 6,300। एंड मशीन 2 उस पर भी 12 मंथ्स का। सो मशीन 2 की बैलेंस ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी। अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा तो एसएलएम है, बट आपको डब्ल्यूडीबी करना है तो 9,500 पे देना होगा। विच इज 9,500 का 950। सो इस ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन रिमेनिंग एसेट्स पे आया 7,250, 7,250। एंड इसके बाद द बैलेंसेस विल बी, पार्ट 1 तो सेल हुआ है, उसका बैलेंस 0 हो गया, अपने आप 0 हो जाता है, डोंट वरी, ठीक है। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन। हमें थर्ड ईयर भी करने को बोला है, नो इश्यूज। 18,000 की असेट सेल हो गई, 63,000 माइनस 6,300, 63 से 7 गए, 63 से 7 गए, कितना? 56,000 आएगा। 56 प्लस 700, 63,000 माइनस 6,300 इज 56,700। परफेक्ट। ये केस कौन सा है? पार्ट 2 का है, पार्ट 2 मशीन 2 का। मशीन 2 का बैलेंस 9,500 था बिगिनिंग में, देखो 9,500 था डेबिट पे।
हमने 950 डेप्रिसिएट किया, 1000 माइनस करो और 50 ऐड करो, 9500 में से 1000 गया, 8500 प्लस 50, therefore it is the balance is 65,250. यहां पे आपका सेकंड ईयर खत्म हो गया। उन्होंने थर्ड ईयर भी बोला तो मैं थर्ड ईयर भी निकाल के दिखाऊंगा, ध्यान देना। अब कुछ नहीं है, थर्ड ईयर में कोई परचेस नहीं, कोई सेल नहीं, जो असेट्स बाकी हैं उनको डेप्रिसिएट करना है, दैट्स इट। पार्ट 2 एंड मशीन 2 है जिनको हम डेप्रिसिएट करेंगे इन द ईयर थर्ड। ओके, ध्यान देना, यहां पे खत्म हो गया ईयर 2, विच इज नथिंग बट 1780। अब हमें करना है 1890। 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्ट 2 का बैलेंस है और मशीन 2 का बैलेंस है। पार्ट 2 का बैलेंस 56,700 है, पार्ट 2 का बैलेंस 8,550 है, टोटल बैलेंस है 65,250। 65,250, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, फिर उस साल में कोई परचेस नहीं डेबिट करने के लिए, सेल नहीं है, डेप्रेशन देके सेल करने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन। पार्ट 2 पे कितना डेप्रिसिएशन? 56,700 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 10% फॉर द एंटायर ईयर, विच इज 5,670। अगर आप 10% 70,000 का निकालते हो, ओरिजिनल कॉस्ट का निकालते हो, तो आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो। बट हम एसएलएम फॉलो नहीं कर रहे, हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, हम डब्ल्यूडीपी मेथड फॉलो कर रहे, तो जो बचा है उसका 10%। सो 56,700 बचा है, उसका 10%। एंड मशीन 2 के केस में भी वही 8,550 का 10%, ना कि उसके ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 का। दैट इज द डिफरेंस। ये समझ में आ गया तो समझ लेना कि आपके लिए इजी हो गया क्वेश्चन। 855, ये दोनों माइनस होने के बाद टोटल डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल में 5, 12, 1 कैरिड, 9, 15, 65, देयरफॉर बैलेंस। पार्ट 2 का कितना बैलेंस होगा? 56,700 बैलेंस था बिगिनिंग में, 5670 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद 51,030 बचेगा। यस, 51,030। एंड मशीन 2 का बैलेंस बचेगा 8550 था, उसमें से 855 गया। सो कितना बचेगा 8550 माइनस 855, 7695। Therefore, the balance will be 58,725। कैलकुलेशन आना ही चाहिए। अकाउंट कितना अच्छा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी इन पोजिशन टू कैलकुलेट द बैलेंसेस एंड एवरीथिंग। दिमाग शार्प होना चाहिए, शार्प करो, नहीं है तो। कितना बैलेंस है? 65, कितना बैलेंस है? 58,725। कितना बैलेंस है? 58,725। मेरे पास कितना बैलेंस है? 58,725 है। सेम देखो, मेरा यहाँ पे लॉस कितना हुआ था? 4,200। 1,800 का डिप्रेशन देके 4,200 का लॉस हुआ था। देखो बराबर है क्या? 1,800 का डिप्रेशन देके 4,200 का लॉस हुआ। परफेक्ट है। उन्होंने यहाँ पे डिटेल वर्किंग नोट ऐसे कुछ तो की होगी। मैं ऐसे नहीं करता, मैं इनर कॉलम में ही दिखाता हूं। मैं ऐसे नहीं करता। योर होमवर्क इज यू हैव टू पास द एंट्रीज, ओके। आपके लिए होमवर्क है, लिख लेना होमवर्क।
मैं अब जानबूझ के होमवर्क दे रहा हूं तो आप थोड़ी प्रैक्टिस तो करोगे उस बहाने, लेकिन बच्चे सॉल्व नहीं करते, मैं देख रहा हूं इतने क्या बिजी है पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ होमवर्क। ओंकार इंटरप्राइजेस जयगांव acquired printing machine of 75,000 on 1st October 2015 and spent rupees 5,000 on its transportation and installation. Total 80,000 में मशीनरी गिरी। Another machinery of 45,000 was purchased on 1st January 17. Machinery 2 आ गई। Depreciation is charged at the rate of 20% on return on value method on 31st March every year. Prepare printing machine account for first 4 years. This is homework. कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं, एकदम प्लेन क्वेश्चन है, आपको करना है। दिस इज होमवर्क। खाली अकाउंट नहीं करना है, आई ऑल्सो वॉन्ट इंट्रीज फ्रॉम यू एंड सॉल्व और ग्रुप पे शेयर करो, कुछ नहीं होता है। रॉन्ग तो रॉन्ग, अरे आप खुद के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते क्या? ठीक है, आगे एक और होमवर्क ले लो, एक और होमवर्क सिंपल वाला दे रहा हूं, ध्यान देना। दिस इज द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 37 इज द होमवर्क। मैं यहां पे डाल रहा हूं, सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं उसमें। अभी हमने जो पार्ट 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन किया ना, वैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट। एक्स लिमिटेड, ध्यान देना प्लीज, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल देना कोई तो। एक्स लिमिटेड whose accounting year is a calendar year, मतलब जनवरी से दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर इज जनवरी से दिसंबर। सो ईयर स्टार्ट्स ऑन 1st January ends on 31st December, सो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को दिया जाएगा, P&L 31 दिसंबर को बनेगा। परचेस मशीनरीज ऑन 1st April कॉस्टिंग 30,000, 30,000 की मशीनरी परचेस की। मशीनरी 1 आपने 30,000 की परचेस की, ठीक है। देन इट फर्दर परचेस मशीन कॉस्टिंग रुपीज 20,000 ऑन 1st October 11, उन्हें मशीन 2 भी परचेस की 20,000 की, ठीक है। एंड अनदर मशीन कॉस्टिंग 10,000 ऑन 1st July 12, और एक मशीन परचेस की M3, कितने में परचेस की? 10,000 में। तो दे आर 3 मशीन्स। आगे पढ़ो क्या लिखा है। ऑन 1st January 13 the machineries which were purchased on 1st April 11, ये 1st April 11 का है, सेकंड वाला 1st October 11 का है, एंड थर्ड वाला 1st July 12 का है। आपका ईयर जनवरी से दिसंबर है, ये समझ लेना, ईयर जनवरी से दिसंबर है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। ऑन 1st January 13 2013 में हुआ, बिगिनिंग में हुआ, फर्स्ट डे पे हुआ। The machineries which are purchased on 1st April 11, one machine costing 10,000 became obsolete, outdated, and was sold for 3,000. मतलब इसमें से एक मशीन पार्ट 1 जिसकी कॉस्ट 10,000 है, was sold at 3,000 on 1st January 13 के बिगिनिंग में। सो जब हम 13 स्टार्ट करेंगे, सेल करेंगे, तो डिप्रेशन नहीं आएगा, बिकॉज फर्स्ट डे ही है। सो देयर इज अ पार्ट 2 जो यूज हो रहा है 20,000, ठीक है। आगे राइट, शो हाउ द मशीनरी अकाउंट विल अपीयर इन द राइट फॉर ऑल द 3 years 2011, 2012 and 2013 in the books of X Limited after charging depreciation at the rate of 10% per annum on return down value basis। चलो कोई तो ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेजो। यस, ठीक है, दिस इज द होमवर्क। इसमें आपको इंट्रीज नहीं, इसमें आपको खाली लेक्चर करना है। इंट्रीज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल बी हैप्पी, मुझे कोई इश्यू नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी। बट यू हैव 2 होमवर्क्स,
right? The first homework is from the textbook, unsolved practical question, and second homework is this question. ठीक है? So दोनों आपको करने, अगर आप नहीं करोगे तो you will be the person who will suffer. ठीक है? चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं. ठीक है? किसी के डाउट से बिफोर आई end for the day? ठीक है? ओके गुड. नेक्स्ट. ठीक है? चलो थैंक यू.